What are the requisites of a good classification? मैं इसमें बहुत सारी थ्योरी है, मैं स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, काम की चीजों पे आ जाऊंगा। बात यह कि काम की चीज क्या होती है ये अभी आप डिसाइड नहीं करेंगे। जो है सब कुछ एक बार ही करना जरूरी है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक भी वर्ड, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। लॉजिक क्रिएट हो पाता ना उससे, उससे बेस बनती है। अच्छा इसलिए ये, इसमें रिलेशंस क्या है, बीच में कुछ पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं, चाहे वो छोटा सा हो, लिंक टूट जाता है। तो प्लीज पढ़ेंगे सब कुछ, याद क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सब कुछ याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है, समझना है। Requisites of a good classification. Suitability. The classification should conform to the object of the inquiry. कह रहे पर्पस क्या है आपका स्टैटिस्टिकल सर्वे लेने का, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन should conform to the object of the inquiry. For example, if the investigation is conducted to inquire into the economic conditions of workers, then it will be of no use to classify them on the basis of their religion. कह रहे फिर उनका सैलरी स्ट्रक्चर देखो, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने उनके फैमिली मेंबर्स है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। एजुकेशन लेवल क्या है, कह रहे रिलीजन का इससे क्या लेना देना। अनएम्बिगुअस, classification should be unambiguous. The classification should not lead to any ambiguity or confusion. It should not be difficult to place units into different groups according to their common characteristics. Data confusing नहीं होना चाहिए, ambiguity नहीं होनी चाहिए data में। Exhaustiveness. Classification should be so exhaustive that every unit of the series should find a place in one group or the other. कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जो आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर मैं वेट स्टडी कर रहा हूँ, किसी का वेट अगर 45 है, मैं चलो एक ही बच्चा है, चलो 50 से बनाते हैं, कह रहे नहीं। एवरी आइटम शुड फाइंड अ प्लेस। एग्जॉस्टिव होना चाहिए आपकी क्लासिफिकेशन। ये नहीं कि अगर आपके 50 स्टूडेंट्स थे तो एक स्टूडेंट का मैं मार्क्स कर रहा हूँ, चलो 10 to 20 कितने का है, एक बच्चा 7 था, मैंने कोई बात नहीं एक ही था ना, नहीं कह रहे नहीं। अगर 7 में आए फिर आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करना चाहिए। Exhaustiveness. Every unit of the series should find place in one group or another. Flexibility. A good classification should be capable of being adjusted according to the changed situations and conditions. Mutually exclusive. Mutually exclusive. The classes must not overlap so that an observed value belongs to one and only one of the classes. There must be no item which can find its way into more than one class. Mutually exclusive. एक आइटम अगर एक क्लास में आ गया तो वो दूसरे में नहीं आना चाहिए। कि अगर किसी के 10 मार्क्स से आपने लिखा कि 0 to 10, 10 to 20, तो हम आगे जाके सीखेंगे 0 to 10 में वो 0 to 9 ही ले रहा होता है, 10 to 20 में वो 10 to 19 ले रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि 0 to 10, 10 to 20 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 10 तो फिर 0 to 10 में भी आ रहा है, 10 to 20 में भी आ रहा है। कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। नो आइटम कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। स्टेबिलिटी. The principle of classification, once decided, should remain the same throughout the analysis. Otherwise, it will not be possible to get meaningful results. Homogeneity. A classification is said to be homogeneous if similar items are placed in a class. All units belonging to a group should exhibit similar characteristics. मार्क्स कंपेयर कर रहे हो तो मार्क्स से कंपेयर करो, हाइट कंपेयर कर रहे हो तो हाइट से कंपेयर करो, अगर एज कंपेयर कर रहे हो तो एज से कंपेयर करो। होमोजेनिटी होनी जरूरी है। क्या पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन के बारे में? ऑब्जेक्ट्स और रिक्विजिट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू simplify and condense the mass of data, to explain similarity and dissimilarity of data, to facilitate comparisons, to study relationships, to prepare the data for tabulation, to present a mental picture. Requisites क्या थे? It should be suitable, unambiguous, exhaustiveness should be there, flexibility should be there, mutually exclusive होना चाहिए, stability should be there, and homogeneity should be there. सर हमारा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप है,
तो हमें ये सब क्या करने की जरूरत बेटा? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन? 3 आइटम्स दिए और फोर्थ लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा ना, आपको एक आध याद होगा, हाँ हाँ यही था यही था यही था, लेकिन अगर सारे पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। वो जानबूझ के कभी कभी तीनों पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के ही दे देंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे आंसर्स आप तभी कर पाओगे अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है कि आपको पता है कि हाँ ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, केस बेस्ड भी तो हो सकता है क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तभी हो पाएगा अगर आपको थरो नॉलेज है, अदरवाइज इतने एक जैसे लगेंगे ना सारी बातें, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि सही आंसर क्या है।